Hello friends, myself Payal Arora. I am a chartered accountant by profession and this is my first video on the YouTube. This video talks about a brief introduction to direct taxations law and it also covers partial contents of the chapter status, which is a part of the syllabus of intermediate students who is pursuing course chartered accountant, CMA or the CS. So if you like the video, then please click the like button and press the bell icon for our latest uploads. You can also join me on the Telegram link, which is shown in my screen. So this is all about myself. So let us start the brief introduction to the direct taxation law. So my dear friends, what you what is a simple person? What is a layman person? um, interpretate what is the direct tax. If you heard about that, what is a direct tax law and what is the indirect tax law? In a layman term, if I say that everybody will explain it will like direct tax, which is directly imposed and directly recovered, a tax which is collected by the government, and indirect tax which is indirectly imposed on the end consumers if they purchase goods or procure services. I agree with this layman understanding in somewhere, but it is not only up to that key the direct taxes which is directly collected or the indirect tax which is indirectly collected, because both the taxes, if you see, these are directly collected from the taxpayer, or you can say assessee in the terms of direct taxation law. So now let us understand actually what you understand by the direct tax and what do you understand by the term indirect taxation, with a few examples. Like if you see in the direct tax, I will call it as a DT, and if I talk about the IDT part, then I will say it as a IDT. So direct tax is what? Direct tax is what? Direct tax is a income based tax. Therefore, we say is a income tax also. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनकम जो टैक्स, अगर मैं नॉर्मल एक लेमैन टर्म्स में बोलूँ, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो टैक्स, जो कर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कर, जो कि हमारी इनकम पर लगता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा एस्पेक्ट होगा कि इज एवरीबडी इज अर्निंग समथिंग इन वे ऑफ, चाहे फिर वो, जैसे अगर कोई एम्प्लॉई है तो ही इज अर्निंग इन टर्म्स ऑफ हिज सैलरी, सपोज ही इज अर्निंग इन टर्म्स ऑफ सैलरी, कि जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर कोई वेज वर्कर है, तो दीज आर ऑल दे आर ऑल अर्निंग सैलरी और वेजेस, दिस इज ए इनकम। ठीक है, तो ये उनकी इनकम पर टैक्स हो जाएगा। द सेकेंड, suppose you have a business, you are doing a business of garments or some other kind of business, you have a confectionery shop or something else. That means you are from a business side, so you are also earning an income. ठीक है, दूसरा होता है कि जो कि जैसे डॉक्टर है या फिर जो प्रोफेशंस हैं, जैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अर्निंग बाय, इफ आई ओपन अ प्रैक्टिस फर्म, इसी तरह से, या फिर डॉक्टर है या जो प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इनकम का और क्या सोर्स हो सकता है? जैसे वी नो अबाउट द कैपिटल मार्केट्स,
लाइक वी इन्वेस्ट इन शेयर्स, वी आर अर्निंग प्रॉफिट्स देयर। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पास इनकम है, मैंने बैंक में एफडी करा ली, एफडी में क्या होता है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा कि हमारे डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में हमारी टाइप्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है। वी आर अर्निंग बाय वे ऑफ सैलरी, वी आर अर्निंग बाय वे ऑफ बिजनेस, वी आर अर्निंग बाय प्रोफेशन, we are earning by way of shares, investing in shares and getting profits there, or bearing a loss maybe, and also by we investing our hardcore money in FD or in a post offices, and we are earning interest on the investor of the same. So but when the next aspect is this, कि when we have to pay the taxes on this income, ठीक है ना, एंड हु विल हैव टू पे द टैक्स ऑन दिस इनकम। ठीक है, तो इनकम टैक्स में हम आगे क्या पढ़ते हैं, दो बातें, कि कब हमें टैक्स कब लगना है, व्हेन, एंड टू होम। तो दो क्वेश्चन है कि व्हेन एंड टू होम, तो ये सब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर। अभी हमारी बात चल रही थी और डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में अगर एक ब्रीफ इंट्रो ले, तो अब हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि अब हाउ द गवर्नमेंट रीच टू अस। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ पेन, कि पेन एक क्राइटेरिया है जिससे वी द गवर्नमेंट एडमिनिस्टर अस, जिससे हमारे पास एक जो गवर्नमेंट की आई होगी वो पेन के थ्रू होगी। ठीक है, पेन नंबर को जैसे हर जगह आप देखेंगे कि इनकम टैक्स की साइट पर हर जगह लिंक करना होता है, इवन आप तो बैंक में भी आप उसको लिंक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एम्प्लॉय, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको पेन नंबर चाहिए। तो उस पेन नंबर से क्या होता है कि वो सब कुछ डायरेक्ट टैक्स की जो साइट है, सीबीडीटी है, इनकम टैक्स की साइट है, वहाँ पर वो डाटा आपका पंच होता रहता है कि या दिस इज द पेन नंबर अगेंस्ट विच ही अर्न this amount of income, this amount of salary. Similarly, if you are doing a business or profession, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस है आपका कुछ प्रोडक्ट्स बेचने का, तो आपको पता है कि आपको जीएसटी लगाना है। ठीक है, तो अगर आपको जीएसटी लगाना है तो जैसे एक आपको एक लिमिट दे दी कि अगर आपने इतना इनकम अर्न करनी है तो आपने टैक्स ऑडिट फाइल करना होता है। तो इस तरह से उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशन है, इसी तरह से प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती हैं, तो उससे होता है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि डायरेक्ट टैक्स में कि इनकम के सोर्सेस क्या हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि हमारे इनकम के सोर्सेस क्या हैं, इनकम किस किस वे से हमारे पास आ सकती है। ठीक है, तो जो मेन हेड थे वो भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बाय वे ऑफ सैलरी, सेकंड बाय वे ऑफ बिजनेस और बाय वे ऑफ प्रोफेशन, थर्ड by way of investing in shares or the property, fourth is by investing in a bank or in post office from where we can earn the interest which is covered under income from other sources, and the fifth one is that ki if you are earning by investing in house properties, so that is income from house property. These are the five sources of income which are described under the direct tax laws, uh, from which on which you have, if these are the five sources of income and you are covered into it and that income is covered into it, then you have to pay the tax. ठीक है, फिर हमने दूसरी बात की कि अच्छा अब आज मैंने इनकम अर्न की है तो मुझे इस पे टैक्स कब देना होगा। ठीक है, ये हम दूसरी चीज में इस पे बात करेंगे। तीसरी चीज इस पे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आखिर कि दैट आई एम अर्निंग समथिंग। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि इफ अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पर आपको अपना पैन देना पड़ता है, पेन देना पड़ता है। तो पेन से क्या होता है कि बहुत सारी कंप्लाइंस होती है जो कि आपकी एम्प्लॉयर करता है, तो वो हम थोड़ा सा उस चीज़ को आगे समझेंगे। लेकिन अभी हम जैसे दो मुद्दों पर आते हैं, सबसे पहले कि हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या है और
इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे कि आपका जो कि कंटेंट है, जो हमारे चैप्टर 1 कवर्ड है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स में, पहला चैप्टर यही है, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ, जहाँ पर हमें ये डिफाइन कर रखा है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या वो होता है डिफरेंस। देखिए, जैसे सबसे पहले है डीटी। ठीक है, डीटी, एंड देन यू हैव आईडीटी, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने एक बात की थी आपसे कि अगर एक लेमैन पर्सन है जो कि फ्रॉम द कॉमर्शियल, जो कि फ्रॉम कॉमर्स फील्ड नहीं है, वो क्या समझेगा इसको कि डी की डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है या इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या है, वो क्या समझेगा। वो कहेगा कि डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्टली लगता होगा, और जो इनडायरेक्ट टैक्स वो इनडायरेक्टली लगता होगा। लेकिन मैंने ऐसा कहा कि ये एक सम पॉइंट तक ये बात से मैं अग्री करूंगी कि यस, हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली लगता हो या इनडायरेक्टली। देखो होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने आपको बोला, जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये है मिस्टर ए। ये कौन है? मिस्टर ए। ठीक है, अब इन्होंने जो है इन सैलरी अर्न की, इनकी जो इनकम का सोर्स है वो क्या है? सैलरी। ठीक है, इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को पैन नंबर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? पैन नंबर दे रखा है। इनके एम्प्लॉयर पर गवर्नमेंट ने क्या एक ड्यूटी बाउंड कर रखी है इनके एम्प्लॉयर पर। तो इनके एम्प्लॉयर पर क्या एक ड्यूटी गवर्नमेंट ने बाउंड कर रखी है कि भाई, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इनकी इनकम है, जैसे 2.5 लाख की लिमिट है, अगर इससे ज़्यादा इनकी इनकम है, तो आपको इनकी इनकम पर क्या काटना है? टीडीएस डिडक्ट करना है। यू हैव हर्ड समथिंग अबाउट द टीडीएस। ठीक है, मैं आपको एक बस एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि सबको पता है कि मिस्टर ए जो है सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या है कि अगर गवर्नमेंट इस सैलरी इनकम में अगर एक लिमिट जो डिफाइंड है, उस लिमिट से आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या है कि आपसे आपकी इनकम पर डायरेक्टली टैक्स ले रही है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बच्चों, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में क्या होता है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो टैक्स है वो आपका किस पे लग रहा है? गुड्स पर और या फिर सर्विस पर। एवरीबडी नो दिस इज जीएसटी। जीएसटी एक टर्म ही है जो कि खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि दैट्स कि वहाँ पर टैक्स किस पर है? गुड्स पर या फिर सर्विसेज पर। अब होता क्या है कि जैसे इनकम टैक्स में जो गवर्नमेंट एक आई रखी हुई है हम पे कि कौन इनकम अर्न कर रहा है, क्या वो लिमिट से ज़्यादा है या नहीं, जो लिमिट सेट आउट की गई है टैक्सेशन के अंदर, अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा है तो ही विल चार्ज अ टैक्स ऑन अस। तो इसी तरह से आईडीटी में क्या होता है, आईडीटी में वी हैव अ जीएसटीएन नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या होता है इसमें एक जीएसटीएन नंबर होता है। एवरीबडी हु इज डूइंग द बिजनेस of providing services or providing or sell or trading in product or in manufacturing or dealing in goods and services, he have to um, uh, obtain a GSTN under GST if he satisfy a certain criteria, that is a turnover limit is there. If his turnover is aggregate turnover in a financial year exceed the limit, then he have to obtain a GST and pay the GST to the government. अब इसमें
क्या जो कंसेप्ट है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं कि हम क्यों इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट कहें या फिर उसको भी हम डायरेक्ट कहें, तो उसमें क्या लॉजिक है। देखो क्या होता है कि सपोज मिस्टर बी जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मिस्टर बी कौन है? एक मैन्युफैक्चरर है। ये जो है मिस्टर सी जो कि एक होलसेलर है। ठीक है, जो कि एक होलसेलर है, उसको एक प्रोडक्ट बेचते हैं 100 रुपये में। ठीक है, उसको 100 रुपीज़ में एक प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, जीएसटी के अंदर वो रजिस्टर्ड है, तो उन्हें यहाँ पर क्या चार्ज करना पड़ेगा? जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो इन्होंने प्रोडक्ट बेचा, ये इसका क्या हुआ? इनका टर्नओवर हुआ, है ना, इनकी सेल्स हुई। तो अब क्या होता है कि मिस्टर बी को क्या करना पड़ा कि मिस्टर बी ने जो इस 100 रुपये में बेचा, उन्हें 18 रुपये जो है इस पे जीएसटी लगाना पड़ा था। ठीक है, 18 रुपये क्या था? जीएसटी था। ये किसको गया? गवर्नमेंट को गया। ठीक है ना, यानी वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि वो अपनी जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में दिखाएंगे कि जी मैंने ये 100 रुपये का इस महीने में ये सामान बेचा है और मैं ये 18 रुपये आपको दे रहा हूँ। सपोज करो कि इस केस में कोई उनका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था, केवल अभी आप इतना समझो कि उसने 18 रुपये का जो टैक्स देना था वो गवर्नमेंट को दिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनको डायरेक्टली ही तो पकड़ा, क्योंकि मिस्टर बी के पास क्या था? जीएसटीआईएन था, जीएसटीएन था। ठीक है, अब जब इन्होंने इनवॉइस दिया होगा मिस्टर सी को, तो उस इनवॉइस पे जीएसटी नंबर आया होगा। ठीक है, जीएसटीएन आया होगा। तो अब मिस्टर बी को अगर इन्होंने बेचा है, तो मिस्टर बी जब आगे बेचेगा वो अपना टैक्स लगाएगा, और जो उसे यहाँ पर उसने ये 18 रुपये मिस्टर सी ने मिस्टर बी को दिए, उसको क्या करेगा? इनपुट टैक्स क्लेम करेगा। ठीक है, अब वो बात की बात है। तो अब क्या है कि मिस्टर बी को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जीएसटीएन जो है डायरेक्टली कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिर जीएसटीएन। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट कैसे बना? कि अब मैं इसको इनडायरेक्ट क्यों बोलूंगी, मतलब एक ही तरह से इनडायरेक्ट भी क्यों बोलूंगी? क्यों? जैसे अब मिस्टर सी ने समझ लो होलसेल से मिस्टर डी को दिया। अब मिस्टर डी क्या है? एक नॉर्मल कस्टमर है, जैसे आप और मैं हैं, जिसके पास जीएसटीएन नहीं है। ठीक है, जिसके पास जीएसटीएन नहीं है, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है। अब ये जो मिस्टर डी है ना, ये मिस्टर डी एक नॉर्मल कस्टमर है। ठीक है, अब मिस्टर डी को, जैसे अब मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर सी ने 120 रुपए की चीज जो है मिस्टर डी को दी, जो उन्हें 100 रुपए में मिली थी प्लस 18 रुपए के टैक्स में मिली थी। अब इसने क्या किया, इसमें इन्होंने अब ये जो 120 रुपए करके इन्होंने बिल दिया, अब ये जो 120 रुपए का जो एमआरपी प्राइस उन्होंने दिया मिस्टर डी को, क्योंकि एमआरपी पे आपको पता है कि प्रोडक्ट्स जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी प्राइस होती है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो जब ये मिस्टर डी के पास ही सामान आया तो उनके पास तो टैक्स लग के आया ना। तो एक तरीके से हम क्या इसको बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने जो एंड कस्टमर है, ठीक है, नहीं अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो मिस्टर सी है, मिस्टर सी ने जब डी को बेचा तो उसने इनडायरेक्टली जो है हमसे टैक्स रिकवर कर लिया। एक तरह से उसको भी तो फायदा हुआ ना, कि उसने यहाँ पर जो उसका ये 18 रुपये था, यहाँ पर उसने उसको 120 रुपये बेच के मेरे से 2 रुपये कवर कर लिए। या मैं ये कहूँ कि हाँ, गवर्नमेंट के पास जो है इनडायरेक्टली, जैसे जब ये चेन चलती जाती है कि मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा या मिस्टर सी ने इसको बेचा, कि बीच में कोई, समझ लो अगर मिस्टर सी अनरजिस्टर्ड होते, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी जो है डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। बट हाँ, एक ये लेमन टर्म्स में ये समझना या ये कहना ठीक नहीं है कि आईडीटी मतलब वो है जिसमें हम जो टैक्स है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट करे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये वाला सिनेरियो देखोगे, तो इस सिनेरियो में आप देखोगे कि इफ़ यू हैव अ जीएसटीएन तो गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द मिस्टर बी इटसेल्फ। ठीक है,
So this is about the first point, which is the which we understand about the layman understanding कि what is a direct and what is a direct tax. ठीक है. दूसरी चीज हमने इसमें अब क्या समझी कि डीटी के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर पैन नंबर होता है, वहाँ पर क्या होता है जीएसटीएन होता है, वहाँ पर इनकम होती है, वहाँ गुड्स और सर्विसेज होते हैं. जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें दो अथॉरिटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. एक तो होती है सीबीआईसी और एक सीबीडीटी. तो सीबीडीटी जो है जो कि डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करती है और या इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर करती है, और जो कि सीबीआईसी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करती है. ठीक है. फिर दूसरा एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि जो डायरेक्ट टैक्स है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है. डायरेक्ट टैक्स में होता है कि हमें एक स्लैब रेट्स डिफाइंड होते हैं. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स में क्या होते हैं स्लैब रेट्स डिफाइंड होते हैं. जैसे अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसकी एज 60 ईयर्स से डाउन है, तो उसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, सपोज करो. ठीक है. स्लैब रेट्स डिफाइन होते हैं. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी कि आप जैसे ही 2.5 से 5 में आएंगे तो आपका 5% का टैक्स लग जाएगा. ठीक है. फिर इनकम बढ़ेगी, फिर आपको 10% देना है. फिर इनकम बढ़ेगी थोड़ी तो फिर आपको 20% देना है. तो ये क्या है, ये नेचर क्या है, ये नेचर है प्रोग्रेसिव. ठीक है. दिस इज अ प्रोग्रेसिव नेचर. ठीक है. तो ये नेचर क्या है प्रोग्रेसिव है नेचर. अब लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आईडीटी में क्या होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लग रहा है कि अगर मिस्टर सपोज करो इसके अंदर, आप सपोज कीजिए अगर मिस्टर ए है, उनकी एक कॉस्मेटिक की शॉप है. ठीक है. कॉस्मेटिक की शॉप है, वो वैसलीन बेचते हैं. ठीक है. अगर वो वैसलीन बेचते हैं तो उस पर क्या होता है, उन्हें 5% का टैक्स जो है, मतलब जीएसटी जो है देना पड़ता है. ठीक है. अब मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए के कॉम्पिटिटर है, ये भी यही चीज़ बेचते हैं, इन्हें भी 5% देना पड़ता है. तो मिस्टर ए और मिस्टर बी में क्या है कि हमें इनकम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. वहाँ पर क्या है एक ही रेट ऑफ टैक्स लगेगा, चाहे कोई और बेचे या आप कोई और बेचे. ठीक है ना. तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहती है. फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज यू हैव टू पे द सेम काइंड ऑफ टैक्स. इवन मिस्टर ए इज सेलिंग, इवन मिस्टर बी इज सेलिंग, इवन मिस्टर डी इज सेलिंग. ठीक है. तो वहाँ पर जो टैक्स जो है वो है रिग्रेसिव है इन नेचर में. वो इस बात से इंक्रीज नहीं हो रहा कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा. कि अगर मिस्टर ए का टर्नओवर 10 लाख है सपोज कीजिए, ठीक है, अगर उसका एक 10 लाख का टर्नओवर है तो ऐसा नहीं, तो अगर वो वैसलीन बेचेगा तो उसे 10% का टैक्स देना पड़ेगा, और मिस्टर बी का अगर 20 लाख का है तो उसे 30% टैक्स देना पड़ेगा. तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. सो लेट अस कम टू द चैप्टर 1. इफ यू सी ऑन माई स्क्रीन दैट यहाँ पर यही डिफरेंस को बताया गया है. तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पर मैंने डिफरेंस में बता रखा है, जैसे सीबीडीटी अथॉरिटी है, यहाँ पर सीबीआईसी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है ना, ये हमने समझ लिया. यहाँ पर क्या है टैक्स स्लैब रेट के बेसिस पर हम बात करते हैं. वहाँ पर क्या है कि रेट्स जो है फॉर डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के वो नोटिफाइड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, एंड इट कैन ऑल्सो बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी, डिपेंडिंग ऑन द कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. या फिर हमने बात की कि ये प्रोग्रेसिव क्यों है, फिर हमने ये बात की कि ये रिग्रेसिव क्यों है. क्योंकि अब आप अगर मेरे एग्जाम्पल से बात को समझेंगे तो आपको यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव अगर एमसीक्यू में आता है
तो आपको उस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोग्रेसिव क्या है, रिग्रेसिव क्या है। आप सिंपल सा हमेशा याद रखेंगे कि प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि जब हमारा टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज़ इन आवर इनकम। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर चाहे मिस्टर बी बेच रहे हैं, मिस्टर सी बेच रहे हैं, उसकी इनकम से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वो एक ही चीज़, एक ही काइंड ऑफ गुड और एक ही काइंड ऑफ सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो दे हैव टू बियर द सेम रेट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। दूसरा कि यहाँ पर हम बात करते हैं इनकम की, वहाँ पर हम बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जो है सेम पर्सन पर होता है। क्यों? जैसे कि अगर मिस्टर ए है, अगर वो एक एम्प्लॉय है एबीसी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उसी पर वो इनकम अर्न कर रहा है तो उसी पर टैक्स लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन, क्योंकि आपने चेन को समझा। जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर से जो है एंड कस्टमर पे आ गया, तो सब पे जो है जो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट है वो डिफरेंट पर्सन पर जो है फ्लो होता है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक डिस्टिंग। इसमें और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट टैक्स जिसमें हम पेन के बेसिस पर गवर्नमेंट हमें आई ऑन रखती है। इनडायरेक्ट टैक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेन, क्योंकि जीएसटी नंबर अगर आप देखेंगे, दिस इज अ 15 डिजिट नंबर इन विच 10 डिजिट्स आर पिकअप फ्रॉम द पेन नंबर इटसेल्फ। तो एक तरीके से जीएसटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेन। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट इन डायरेक्ट टैक्स। मे बी you have clear some by this discussion the points कि what is in the layman term, that is the direct and the indirect tax. Now so please move on to the next point. अब हमने बात की थी, जब हमने इनिशियली बात करी तो हमने बात करी कि डायरेक्ट टैक्स में हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगे। मैंने आपको एक 5 हेड सोर्सेज ऑफ इनकम बताया कि हम इनकम अर्न करते हैं या तो सैलरी से, या वी हैव एन हाउस प्रॉपर्टी, या फिर हमारा बिजनेस है या हमारे प्रोफेशन है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और फ्रॉम द कैपिटल गेन। ठीक है। द कैपिटल गेन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट वो हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है हर, तो वो उसमें हम कवर करेंगे। अब फिर हमने एक और बात की थी कि अच्छा ये सोर्सेज हैं इनकम के, फिर हमने बात की कि अब ये इनकम हमने अर्न तो कर ली, लेकिन हमें ये टैक्स कब देना है। ठीक है। हमें ये टैक्स कब देना है। अब इसमें क्या होता है, देखिए डायरेक्ट टैक्स में एक कंसेप्ट है आपका, देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। अब आपने डायरेक्ट टैक्स में ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रीवियस ईयर जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म असेसमेंट। ठीक है। असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हम एग्जामिन कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपने हमने इसके अंदर दो चीज़ें डिफाइन करी है, एक प्रीवियस ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। नाउ लेट अस देखें। देखो होता क्या है इसके अंदर, हम क्या होता है कि अगर एक समझ लो आज फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। सबसे पहली बात कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर से आप क्या समझते हैं। देखो कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर इज एवरीवन नो, अभी ही गया है, वी ऑल सेलिब्रेटेड न्यू ईयर, so it is from Jan to December.